Hello students, how are you? Now this is class 12 physics chapter 9 ray optics and optical instruments lecture 6. You have read Snell's law, refraction of light you have read and laws of refraction of light. दो लॉ है, ये आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है. आई एम भोला प्रसाद शर्मा, आई एम टीचिंग फिजिक्स. So you are liking, you are subscribing and sharing also. Thank you very much for it. And I am making video on YouTube of class 10th, 11th and 12th. If you need systematically notes and materials, you can watch, like, subscribe. Thank you very much. Now you can see, you will study principle of reversibility. Principle of reversibility. Now you can see here x dash, a line which separates two media, air one medium and here water H2O medium 2. ये एक्स वाई लाइन एक्स एक्स डेस लाइन जो है ये दो मीडिया को सेपरेट करता है. ठीक है. इधर रेयर मीडियम हो गया एयर, डेंसर मीडियम वाटर हो गया. और यहाँ एक प्लेन मिरर है. दिस यू आर गेटिंग, दैट इज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर. अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, पहले इसको समझो. ये हमारा एक्स वाई, ए लाइन विच सेपरेट्स टू मीडिया, और एन एन डैश नॉर्मल है, परपेंडिकुलर. और इधर से जो है ए बी ए ओ, ये इंसिडेंट रे है. तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. और जब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल तो यहाँ पर हमारा एक मिरर है, प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर है तो लाइट प्लेन मिरर पर क्या करेगा, नॉर्मली इंसिडेंट होता है. नॉर्मली ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मली इंसिडेंट होता है. अब यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो गया. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब यहाँ प्लेन मिरर है, लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर नॉर्मली. आफ्टर प्लेन मिरर पर व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Light incident on the plane mirror normally, so light will return, light will reflect along the same path. इस path से क्या हो गया, ये return हो गया. इस तरह से एरो मार्क शो कर सकते हो, return हो गया. Now light is traveling from denser to rarer medium, there will be refraction of light. So light is going from denser to rarer, it will go away from normal. इससे normal से क्या होगा, दूर चला जाएगा. यहाँ पर कितना हो गया, एक यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर पर फॉल हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और फिर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सो इट इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस occurred on the path, and finally light will return along the same path. Okay, light will be retraced along the same path. So this phenomenon is known as principle of reversibility. यहाँ definition देख सकते हो. If the path of ray of light is reversed after suffering a number of reflections and refractions, it retraces, means it returns its path. क्या होगा, अपने path से ही क्या होगा, अपने path पर return हो गया. ठीक है. तो क्या हो गया यहाँ, इफ लाइट रिटर्न्स रिट्रेसेस along the same path after suffering number of reflections and refractions is known as principle of reversibility. तो क्या हो गया principle of reversibility, if the path of a ray of light is retraced, is returned, if the path of the ray of light is reversed, retraced along the same path after suffering a number of reflections and refractions is known as principle of reversibility. So now you will prove here.
Now you can see when light travels from air to water, Snell's law at point O. ये क्या हो, light is traveling from air to water, so there is a refraction of light. Light is traveling from medium 1 to medium 2 according to Snell's law at this point. तो ये क्या कर सकते हो, mu is equal to sin I by sin R. ये लाइट क्या हो, ओ पॉइंट है, और ये मिरर क्या है, एम मिरर है, और इस नॉर्मल जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने एन लिया है. तब नाउ वी आर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. अब क्या होगा, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2. यहां पे लिख सकते हो 1 to 2. नाउ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर. When light travels from water to air, Snell's law at point O. Now light is traveling from medium 2 to 1, from water to air. Now we can apply Snell's law at this point. How will you apply? Mu is equal to sin अब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, वाटर टू. अब इसके लिए क्या होगा, ये आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आर हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई. ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब यहां से देखो क्या लिखोगे, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 to 1. यहां पर क्या लिख सकते हो, 2 1 लिख सकते हो. नाउ वी आर गेटिंग इक्वेशन 2. सो दिस इक्वेशन 1 and 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, गिव्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड गिव्स. तो क्या इधर लिखोगे, म्यू 1 to 2 इंटू म्यू 2 to 1. ये 1 to 2 और यहाँ 2 to 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इंटू ये लिखोगे साइन आर बाय साइन आई. ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1. ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. Now from here you can write down mu 1 to 2 into mu 2 to 1 is equal to 1 कर सकते हैं. लाइट कहाँ से ट्रेवल हुआ, मीडियम 1 से, फिर 1 हमें आ गया. या इसको लिख सकते हो mu 1 to 2 is equal to 1 बाय, ये हो गया, और इधर से जाएगा तो mu 2 to 1. This we are getting from principle of reversibility. यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडिया. अब ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. इस तरह से भी कर सकते हो, या इसको n के तरह से भी कर सकते हो. इतना है, इसको लिख सकते हो, क्या हो गया, n 1 to 2 इंटू n 2 to 1 इज इक्वल टू 1. इस तरह से भी लिख सकते हो. और ऑल्सो यू कैन राइट n 2 1 इंटू n 1 2 इज इक्वल टू 1. ये ही लिख सकते हैं. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 to 1. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. या यहाँ एनसीईआरटी में ये रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. ये कह सकते हो, दिस यू कैन से n12 इज इक्वल टू 1 बाय n21. दिस यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. इस तरह से यहाँ हमने क्या देखा, दो मीडिया लिया था, ठीक है, दो मीडिया लिया था. अब यू आर टेकिंग सो मेनी मीडिया,
या हम लोग कंसीडर करते हैं रिलेशन बिटवीन थ्री मीडिया, एयर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और ग्लास, ये तीन मीडिया लेते हैं। नाउ रिलेशन now we can see refraction through various media या रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडिया या रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडिया या रिफ्रैक्शन थ्रू वेरियस मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया, यानी तीन मीडिया यहाँ लेते हैं, एयर, वाटर, ग्लास, और उसमें रिलेशन जस्ट टेक रिलेशन एवं थ्री मीडिया, एयर, वाटर और ग्लास। तो यहां से हम लोग कंसीडर करते हैं डायग्राम, कंसीडर कर सकते हैं। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडिया या रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू वेरियस मीडिया। तो तीन मीडिया यहाँ लेते हैं, ये हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया और ये ग्लास। ये वाटर को इस तरह से भी चाहो तो दिखा सकते हो, यानी ये एयर और वाटर, एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। यह वाटर टू ग्लास, वाटर क्या हो गया रेयर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम। यहाँ ग्लास टू वाटर डेंसर मीडियम, इधर एयर रेयर मीडियम। नाउ दिस इज एट दिस पॉइंट वी कैन अप्लाई, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ए बी इंसिडेंट रे और ये बी सी रिफ्रैक्टेड। एरो मार्क दे सकते हो, यहाँ भी एरो मार्क दे सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। और यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये R1 भी क्या होगा अल्टरनेट एंगल, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल ज्वाइंट है। सो R1 एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ भी लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। फिर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर भैया क्या R2 है और यह R2 अल्टरनेट एंगल। और लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, इधर भी हमारा क्या है एयर है, ग्लास टू एयर, तो लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या पैरेलल है, यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या होगा E, सो I एंगल I इज इक्वल टू E एंगल ऑफ इमरजेंस, ये है। तो नाउ वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट B, C एंड D, 3 पॉइंट्स पर। तो यहाँ क्या होगा स्नेल्स लॉ एट पॉइंट्स B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ, तो क्या A टू म्यू W, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, इज इक्वल टू क्या होगा साइन I बाय साइन R1, इक्वेशन 1। नाउ हियर वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट C पॉइंट, तो क्या होगा लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, ये म्यू वाटर टू ग्लास W G इज इक्वल टू साइन, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा साइन I R1 बाय साइन R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ स्नेल्स लॉ वी कैन अप्लाई एट पॉइंट D, then light is traveling from glass to air, तो क्या होगा G mu A is equal to sin R2 by sin E। Now we can multiply all three equations we can multiply, then we will get a relation। क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। Equation 3 gives
ये क्या दे देगा, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू ए टू वाटर, म्यू वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, और इधर रहेगा ग्लास टू एयर। नाउ इसको देखो, LHS को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, RHS को भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ यू विल गेट साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन R1 बाय साइन R2, और फिर यहाँ साइन R2 बाय साइन IE, साइन R2 बाय साइन E, और यहाँ दोनों क्या इक्वल है, एंगल I और E क्या है, इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, और यहाँ साइन R1 ये हम कैंसिल कर सकते हैं, साइन R2 कैंसिल, और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो गया, E है। तो नाउ दिस यू विल गेट 1, ये क्या मिलेगा, ये 1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला। दिस इज रिलेशन अमंग 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर, वाटर, ग्लास, ये तीनों में रिलेशन है। यू आर गेटिंग रिलेशन, इसको कैसे लिख सकते हो, म्यू एयर टू वाटर तो म्यू वाटर टू ग्लास, म्यू ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है। या इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, म्यू एयर टू वाटर इंटू वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय, ये नीचे आ जाएगा, म्यू ग्लास टू एयर, एंड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यू हैव रेड, 1 बाय म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एयर टू ग्लास। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, जस्ट नाउ यू हैव रेड, सो इट विल बी म्यू एयर टू वाटर, म्यू वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू म्यू एयर टू ग्लास। अब यहाँ पे देखो 3 मीडिया है, जितना भी मीडिया हो यू कैन टेक, इसी तरह से क्या होगा, एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू और कुछ मीडियम ले सकते हो, लेकिन यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ ए होगा, 1 होगा। यहाँ इसमें देखो ये हमने लिखा है इसको एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ठीक है। अब एयर टू ग्लास, यहाँ भी क्या होगा, एयर टू ग्लास, ये रिलेशन है, रिलेशन अमंग 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन जो NCERT में दिया हुआ है, ये लिख सकते हो, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, N ये W, या अगर इसके प्लेस पे इस तरह से लिखा, ये N, ठीक है, यानी मीडियम हम लेते हैं, यहाँ क्या होगा, एयर, वाटर, ग्लास। अगर 1 2 3 ले मीडिया, 3 मीडिया, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, N 2 1 एयर हो गया, ये हो जाएगा 1 एयर, और वाटर हो गया मीडियम 2, और ग्लास हो गया 3 मीडिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N 2 1, और यहाँ हो जाएगा N 3 2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा N 3 1, ये रिलेशन हो जाएगा। NCERT में दिया हुआ है, एयर के लिए हमने क्या लिखा, 1 2 2 1, और इधर हो गया 3 2, और हो गया 3 1, ये रिलेशन, दिस इज द रिलेशन गिवन इन योर NCERT बुक। सो ऑल्सो यू विल बी फेमिलियर, 3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीनों में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन अमंग 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ relation between real depth RD, real depth and apparent depth AD, ये रिलेशन क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय apparent depth, you have to
डेराइव। ये हमारा ग्लास है या बीकर है या कोई टब है, इसमें वाटर है और नीचे जो है ये कॉइन है या सपोज करो फीस है। अब यहाँ से अगर आई है इधर से देखेंगे तो ये क्या दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा। ऊपर कहाँ दिखाई पड़ेगा, आई पर, ये इमेज हो गया। इधर हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। देखा होगा एक्वेरियम वगैरह में मछली वगैरह है, थोड़ा साइड से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा मछली क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ये हमारा क्या होगा, रियल डेप्थ। एक्चुअल में मछली यहाँ है, कॉइन यहाँ है, ये हमारा रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ हो गया। ये देखो ओ ए क्या हो गया, रियल डेप्थ, और ए आई क्या है, एपरेंट डेप्थ। देखने में लगेगा मछली यहाँ पर है, एक्चुअली मछली कहाँ है, वो पॉइंट पर। कॉइन यहाँ पर अगर है, यहाँ से देखोगे, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट यहाँ से, एक तो लाइट क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, नॉर्मली ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री। अब दूसरा क्या है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा, लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये एन डैश क्या है, नॉर्मल है। ये क्या होगा, वाटर है, और इधर हमारा जो है एयर है, एयर है। अब इस रे को प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ पर आई हो गया, यानी इमेज हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर। ये हमारे रियल डेप्थ ओ है और ए आई क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ। तो नाउ अब देखो यहाँ पर जो है ये हमारा आई आर है और ये हो जाएगा दिस एंगल, ये देखो नॉर्मल है और ये दोनों पैरेलल है, दिस ट्रांसवर्सल जॉइंट, ये आई है, ये भी क्या हो जाएगा, आई, अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ देखो ये इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस किया, तो ये दोनों रे क्या है, नॉर्मल है, और ये ट्रांसवर्सल जॉइंट, ये आर हो जाएगा, ये भी ये आर है, ये आर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो नाउ वी कैन टेक इन ट्रायंगल बी ए ओ, साइन आई इज इक्वल टू ए बी बाय, इन राइट ट्रायंगल बी ए ओ, साइन आई इज इक्वल टू पी बाय एच, साइन आई इज इक्वल टू पी बाय एच, यानी ए बी बाय ओ बी। अब ये जो है दिस बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए, तो क्या होगा, ओ बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए, क्या ओ बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए। अब यहाँ से क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू ए बी बाय ओ बी के प्लेस पे लिख सकते हो ओ ए। अब इस ट्रायंगल में इन राइट ट्रायंगल बी ए आई, राइट ट्रायंगल बी ए आई, साइन आर इज इक्वल टू दिस, साइन आर इज इक्वल टू पी बाय एच, साइन आर इज इक्वल टू ए बी बाय आई बी, साइन आर इज इक्वल टू ए बी बाय आई बी। और ये पॉइंट जो है, बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए, सो दिस डिस्टेंस आई बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए आई कर सकते। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते ए बी बाय आई बी के प्लेस पे ए आई वी कैन राइट। अब नाउ स्नेल्स लॉ, एट पॉइंट, अब बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ वी कैन अप्लाई, ओके, देन यू कैन सी व्हाट विल यू गेट। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यहाँ लिख सकते हो वाटर टू एयर लिख सकते हो। अब वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई का वैल्यू क्या होगा, ए बी बाय ओ ए बी बाय ओ ए डिवाइड बाय साइन आर का वैल्यू हो जाएगा ए बी बाय आई ए बी बाय ए आई, या इसको लिख सकते हो ए बी बाय ओ ए इंटू क्या होगा ए आई बाय ए बी। ये ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई बाय
ओ ए आई, ये क्या होगा एपरेंट डेप्थ, ये क्या होगा रियल डेप्थ। अब इसको नीचे जैसे अगर हम कंसीडर करें, वन कंसीडर करें, देन यू कैन रिवर्स इट, तो क्या हो जाएगा 1/म्यू वाटर टू एयर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए बाय ए आई। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यू हैव रेड, ये क्या होगा 1/वाटर टू एयर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एयर टू वाटर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये एयर टू वाटर, एयर टू डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा ओ ए बाय ए आई। ओ ए क्या है रियल डेप्थ और ए आई क्या है एपरेंट डेप्थ। तो नाउ this you have proved, therefore mu, now for simplicity you can write down mu is equal to OA by AI, OA that is real depth by AI apparent depth। अब इसको जो है दिस यू कैन कंसीडर, अब देखो ये हमारा रियल डेप्थ, वाटर का डेप्थ जो है, वाटर का हाइट जो है टी है। नाउ यू कैन से नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, ये डी है। एक्चुअली कॉइन जो है यहाँ पर है बॉटम पे, यहाँ से जब देखते हैं तो दिखाई पड़ता है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या होगा नॉर्मल शिफ्ट, यानी कितना ऊपर दिखाई देता है, एक्चुअल से कितना ऊपर दिखाई देता है इमेज, यानी ये हमारा क्या होगा नॉर्मल शिफ्ट। इसको अगर हम स्मॉल डी से डिनोट करें, स्मॉल डी से, ये डिस्टेंस स्मॉल डी से, तो हाउ विल यू राइट ओ ए, दिस यू कैन से इस तरह से, देखो ये ओ आई, this OI we can write OA a minus AI, ये OI जो है ये नॉर्मल शिफ्ट, इसको हम D से डिनोट करें, सपोज करो, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट दिस OI इज इक्वल टू OA a माइनस AI। अब इसको D से डिनोट करें, ये OA हो गया, OA क्या हो गया हमारा ये रियल डेप्थ। अगर OA को हम कॉमन ले लें, OA को अगर हम कॉमन ले लें क्या होगा 1 माइनस AI बाय OA। कॉमन लेने का मतलब इसे डिवाइड करना, इससे क्या इसको डिवाइड किया तो 1 हो गया, इसको डिवाइड किया OA से इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हो OA 1 माइनस 1 बाय OA बाय AI। ऐसा क्यों लिखा हमने, देखो ये OA है, OA क्या किया हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब इसको डिवाइड किया किसी OA से, डिवाइड करोगे O इसको OA से तो 1 हो गया, इसको डिवाइड करो OA से इतना हो गया, तो OA और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस इसको लिखा इतना 1 बाय इतना, ये हमारा रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला हो गया म्यू, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं म्यू, ठीक है। तो व्हाट रिलेशन यू विल गेट, डी जो है डी इज इक्वल टू क्या होगा OA टी 1 माइनस 1 बाय म्यू, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ म्यू, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने क्या प्रूव किया, म्यू इज इक्वल टू दिस रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, दिस यू प्रूव। और ये नॉर्मल शिफ्ट एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का मालूम हो और ये डेप्थ मालूम हो, देन यू कैन फाइंड आउट ये फिश जो है कॉइन है कितना ऊपर दिखाई देगा। ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मालूम 1.33, और ये डेप्थ अगर मालूम हो एक्वेरियम वगैरह का, देन यू कैन से एग्जैक्ट व्हाट विल बी द ये
ओ आई, यानी दिस शिफ्ट कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है. वन क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड on this formula, so you will solve. Thank you for watching. Thank you very much. Okay, like, subscribe. Thank you.